Good afternoon, dear student. Hello. Hello, dear students. We are waiting for another student for joining. Okay, we are waiting for 2 minutes for other students to join. Then we'll start the lecture. Okay, fine. So, is it visible, dear students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So, no doubt today we are going to focus on basic concepts. Okay. Whether you have to first of all, we have to clear basic concepts, how to do the programming. After that, we're going to start. Visible. Yes, yes. Now is it visible? Yes, ma'am. Okay, means presentation is shown to on. Okay, fine. Okay, dear student. Fine. So actually our data structure concept we are not yet started, dear student, with uh, almost 10th number lecture, right? Total number of lectures are 10 we have already started, but still we are not at all started our main basic concepts of data structure. Okay, why? Because we have to focus on basic concepts of programming. Okay, so dear student, let you clear one thing here. When I want to teach you the concept of arrays data structure, first of all you have to clear how the code will be developed. Means you should clear the basic concepts of programming. Means how the if loop will executed, how for loop will executed, then how do while loop will executed. Okay, so dear students, I am talking about in which language, that is C++ language. Okay, और मैंने ग्रुप पे मैसेज भी शेयर किया है कि everyone has to join the online GDB classroom. Why? Because it's very important. आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे और ऑलरेडी मैंने असाइनमेंट अपलोड किए हैं इफ स्टेटमेंट के रिलेटेड. तो ये आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना है और अपलोड करना है. Whether if you have any doubt, you can ask. Okay. So I hope everyone familiar about the online GDB concept. I hope. Anybody having some doubt related to this? किसी को डाउट नहीं है? So don't take fear about it. The programming concept. प्रोग्रामिंग आने के लिए आप लोगों को पहले एटलीस्ट लूप्स पता होने चाहिए कि उसको डेवलप कैसे करना है. ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर अनदर स्टूडेंट्स आल्सो. ओके, but some of the students still joining, so again there is a issue. Okay, so problem regarding this, that is when I am going to start the if loop, again some of the students are joining, it's not happening. Okay, so we are waiting almost 5 minutes are over. Okay,
So we are waiting 1 or 2 minutes more, then we'll start our session. Okay, only 1 minute we are waiting. Okay, so before that, everyone should concentrate on that. That is how loop will be executed. प्रोग्राम स्टार्ट करने के पहले डियर स्टूडेंट, अभी मेरा एक क्वेश्चन है सब लोगों को. आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन टू एवरीवन. आई होप एवरी स्टूडेंट already in C++ concept already started in practical as well as lecture also. Okay, in basic concepts also clear, right? C in क्या है, C out क्या है, उसके बारे में भी आप लोगों को बताया जा रहा है. फिर भी मैं क्या करने वाली हूँ, उसको रिवाइज करूंगी. जितना रिवीजन होगा, जितना आप लोग उसको प्रैक्टिस करोगे, सो दैट आपके सारे कंसेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे. तो अभी मैं जो बेसिक इस पे फोकस करने वाली हूँ. डियर स्टूडेंट्स, आपके जो बेसिक कंसेप्ट है उसके ऊपर फिर से कंसंट्रेशन होने वाला है. मतलब जो स्टूडेंट का लेट्स से अब तक क्लियर नहीं हुआ, उनके लिए सेपरेट सेशंस होने वाले हैं. फिर से लूप स्टेटमेंट पे आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोगों के लिए फिर से वो सेशंस रखने वाले हैं. बट नो डाउट, हम जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं करते तब तक हमारा डेटा स्ट्रक्चर आगे नहीं जा सकता. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट थ्योरी, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल, बिकॉज सारा खेल अपना किसके ऊपर है, प्रोग्रामिंग के ऊपर है. और जब तक प्रोग्राम क्लियर नहीं होगा तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा. ओके, so once again, good afternoon everyone, dear students. Basically, today we are going to focus on our basic concept, that is programming concept. In programming, there is a first loop, that is if statement. Okay, so what if statement we are going to do and what are the relational operators are there. Okay, so relational operators कौन से हैं ये भी हम लोगों को देखना है. How, using relational operator, how we are going to uh, generate that loop. Okay, so logic कैसे लगाना है हम लोग देखने वाले हैं. Okay, उसके बाद the basically important, what is conditional statements are. The conditional statements allow us to control whether a program segment is executed or not. Yes, if statement always given that it is true or false. There are two possibilities, either true or false, whether program should be executed or not. There is two construct. If statement, in which if we are using single if loop, secondly we are using if else loop, third we are using if else if loop. Okay, and after that we can use switch statement. Okay, so dear student, we are going to focus on how if we are going to deal with if loop. Okay, so we are going to concentrate here. The syntax of if loop is, okay, so what exactly syntax of that loop. Okay, so we are going to concentrate here. So basic if statement. Dear student, this is a basic point, that this is very important. Now we are also focusing on data structure, how algorithm will develop. We have seen how the flowchart will develop, what is meant by this arrow, this is meant by the decision box, whether it is true and false. In our programming language, you should clear the flowchart also. Then apart from algorithm, the graphical representation is very much understandable, so that we can easily clear the concept. Okay, so graphical representation आप प्रोग्राम का करते हो, मतलब आप फ्लो चार्ट निकालते हो. फ्लो चार्ट मीन प्रोग्राम का फ्लो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वो कैसा है वो निकालते हो. सो नो डाउट आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो गए. ओके, सो व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ इफ लूप. if keyword is very important. Then in rounded bracket we have to give the condition, then in which we have to write the action. Okay, so first important thing is that when we are performing if loop, so if statement is very important. कब हम लोगों को if statement यूज करना है, कब नहीं यूज करना है, वो भी समझना चाहिए. so condition किस वे से, कौन से अलग अलग वेज है जिससे हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं. so first of all, the syntax of if should be if whether we want to take the decision whether true or false. दो ऑप्शन हमारे पास रहते हैं तब हम लोग इफ लूप यूज करते हैं, और उसके लिए ऑप्शन से इफ कीवर्ड, देन योर कंडीशन, देन योर एक्शन. इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा आता है. सो दिस इज योर कंडीशन, वी आर गोइंग टू राइट हियर वेदर इट इज फॉल्स, तो इट विल डायरेक्टली डिस्प्ले करेगा, एंड को जाएगा. वेदर इट इज ट्रू, देन वी हैव टू डू सम एक्शन. ओके, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन एग्जीक्यूट द एक्शन, whether the action is either a single statement or group of statement within the success. This is very important in whether the if loop is concerned. So the basic point is that you should write down the if statement very clearly. if statement कब लिखना है ये पहले आपके माइंड में आना चाहिए. 10 बार लिख के देखो if statement. In rounded bracket there is condition, then we have to perform the action. This is a
सिंटैक्स ऑफ if loop. ओके, उसका हम एक्चुअल यूज देखने वाले हैं, सो दैट यू टोटली क्लियर द कंसेप्ट ऑफ इट. ओके, सो द नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मुझे चॉइस, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, पुट मल्टीपल एक्शन स्टेटमेंट विद इन ब्रैकेट. ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू पुट दैट ब्रैकेट मींस, ब्रैकेट में हम लोग कैसे लिखने वाले. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ कंडीशन इट्स रेनिंग, दिस इज माय कंडीशन, वेदर रेन रेनिंग इट कम्स. अभी तो रेनिंग का ही सीजन है, तो मुझे क्या करना चाहिए. देयर इज टू पॉसिबिलिटी. इफ रेनिंग इज ट्रू, ओके, यस इट्स रेनिंग. if it's raining then take umbrella, either wear the raincoat. okay, बारिश आ रही तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अम्ब्रेला लेना पड़ेगा, इधर रेनकोट वेयर करना पड़ेगा. एल्स, इफ बारिश इज नॉट कम, एल्स मतलब क्या, एल्स पार्ट है उसका अपोजिट. ओके, इफ ट्रू है तो एल्स क्या रहेगा, फॉल्स. सो नो नीड टू वेयर एनीथिंग, मतलब हम लोग एग्जिट करेंगे. तो ये एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हम लोग कंडीशन जो यूज कर रहे हैं. ओके, वी आर यूजिंग सम कंडीशन, राइट. सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, इफ में हम लोग मल्टीपल टाइप के कंडीशंस लिख सकते हैं, और वेदर इट इज ट्रू देन इट विल गो इनसाइड. जैसे हमारा फ्लो चार्ट बता रहा है यहाँ पे, वेदर कंडीशन इज ट्रू वी हैव टू राइट एक्शन. एक्शन मीन्स हमारा करली ब्रैकेट में यहाँ पे स्टेटमेंट आएंगे. ओके, इफ इट इज नॉट, इफ इट इज फॉल्स देन it will should it directly go to exit, or it's not a raining. Okay, or we can stop it. Okay, this is the best example when we are using the if statement. Okay, whether we should take some decision whether it is true or false, then we have to use if loop. Okay, so basically we have to focus on the program, that is program to read a number and print its absolute value. Okay, so whether we have to start any program, this is one example they have given. We are totally concentrate on how we are going to start the program and all, how it will write. Basically आप लोग clear concept clear करो, सिर्फ हमें क्या क्या देखना है, हम लोग program बाद में देखने वाले हैं. Okay, next, these are the relational operators are used to make the if loop. Just look here everyone. Relational operators are used to compare two values to form a condition. Yes, this is very very important dear students. I am again quoting you all. When the difference is given here in maths, which kind of operators you have used in programming language, let's say in C++, you have used equal to. when you want to use in condition, ये बहुत important है कि हम लोग condition लिखते वक्त भूल जाते हैं. तो यहाँ पे simply दिखा है, देखो, the relation operators are used to compare two values to form a condition. Yes, in maths there is equal to operator, in C++ there is equal to, means we have, when we are writing any condition we have to use double operator of equal to, that is equal to. In plain English, if we are giving some example, that is, if a equal to b means what, a equal to means put the value of b into a. Yes, we have to use in our loop, that is equal to. आपको दोनों एलिमेंट सेम है ये चेक करना पड़ेगा, चेक करना है whether these two numbers are similar or not. तो ये कंडीशन डालनी होगी, तो आपको सिर्फ इक्वल टू ऑपरेटर डाल के नहीं चलेगा. we have to use equal to. I hope everyone is agree. Okay, suppose आपको conditions लिखते वक्त कौन से ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हो, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. you can use this type of operators. Okay, these are very important. For example, how we are going to give the condition. For example, यहाँ पे मैं बोलूँगी if number of students is less than 200, or 10 is greater than 20, or 20 into j equal to 10 plus I. Dear student, there is one important part is that you can write n number of conditions in one राउंडेड ब्रैकेट. राउंडेड ब्रैकेट्स में आप लॉट्स ऑफ कंडीशंस दे सकते हैं, बट उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है यहाँ पे. ओके, सो वील कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. सो ये पार्ट हम लोग बाद में देखने वाले हैं. वी हैव टू फोकस वन इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज, यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर राइटिंग टू कंडीशंस, वन कंडीशन, एम्परसेंड, डबल एंड ऑपरेटर और डबल और ऑपरेटर, ये दोनों का मीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोग्राम में. ओके, तो जो आप लोग ट्रूथ टेबल सीखते हो वही मीनिंग है, जैसे आप लोग डेल में ट्रूथ टेबल सीखे हो उसका मीनिंग यही है. आपको कंडीशन लगाते वक्त कैसे कंडीशन लगानी चाहिए, कैसे मुझे उसको यूज करना, ये समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे मैं फिर से फोकस कर रही हूँ यहाँ पे, जैसे एंड ऑपरेटर, देखो एंड मतलब ट्रू, ऑपरेंड वन, ट्रू, द आउटपुट विल बी ट्रू, false, the output. In case of and, output will be false.
false true, it will be false, false false, it will be false. So you know that and operator and or operator in truth table in Dell. Similarly here, we have to check when we are using double ampersand in our condition or double or in our condition, we should clear the meaning of it. आफ्टर दैट वी हैव टू यूज, पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि मैं लूप्स को कैसे बना सकता हूँ, कौन से ऑपरेटर्स में यूज कर सकता हूँ, उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं. आई होप अटेंडर क्या चार्ट. yes, yes, everyone is agree with this. Okay, so operator precedence are which come first. Okay, so in that case कौन सा ऑपरेटर फर्स्ट आता है, तो ये प्रायोरिटी सेट की है. स्टार, डिवीजन, मॉड्यूल, ये जो ऑपरेटर है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, प्लस माइनस को सेकंड प्रायोरिटी. तो प्रायोरिटी का जो किस्सा है, मीन्स हाउ वी आर गोइंग टू गिव द प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर, इट्स नॉट अवर if condition is concerned, but you should know what which operator should be in highest priority. Okay, so this is not it's not more important than it. Okay, so basically we have to focus on what this is very important when we are forming any condition. ये slides बहुत important है कि हम लोगों ने if loop में कैसे condition देना चाहिए. Okay, so हम लोगों ने theoretical part जो जो उसके basic concepts है वो सब हम लोगों ने देख लिए. अभी हम लोग exactly किसमें करने वाले हैं, ऑनलाइन जीडीपी पे करेंगे, so that you have to clear all the points. Okay, so अब लोग हम लोग देखते हैं. इससे पहले one important thing is remaining, that how we are going to deal with that parentheses and all, how we are going to use in the programming the condition. This is also very important. Okay, so basically we are focusing on each and every condition. किस वजह से हम लोग condition दे सकते हैं वो भी हम लोग पहले देख लेते चाहिए. तो उसके बाद हम लोग एक बार प्रोग्रामिंग स्टार्ट की तो हम लोग प्रोग्राम के बारे में बोलेंगे. ओके, सो अगेन देयर आर मोर ऑपरेटर्स are given, that is unary operators, means exclamatory mark, parentheses, then multiple operators, additive operators, relational ordering. Okay, less than or equal to, greater than or equal to, equality. हमेशा याद रखो equal to operator we have to use, not equal to, logical and, that is ampersand, double ampersand, logical or, that is double or, assignment operator. These are the very important operators while we are developing any if loop. Okay, कंडीशन बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, 5 is not equal to 6 or 7 is less than or equal to 6. Using or operator, there is one important concept is that or means from both anyone can true. और कंडीशन का मीनिंग होता है जब आप लोग कंडीशन में ये डालते हो, दो कंडीशन आपको देनी है और ऑपरेटर यूज करके, सो एक में से, दोनों में से एक भी ट्रू रहेगी तो भी लूप एग्जीक्यूट होगा. दोनों में से सपोज मुझे क्या करनी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, मतलब उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर यूज करते हैं. तो थर्ड वाला जो एग्जांपल आपको दिख रहा है, 5 into 15 plus 4 equal to 13, double and 12 less than 19, or okay, likewise we have written lots of conditions in our loop, but the major difference is that when we are writing in our condition ampersand operator, means ampersand का meaning क्या है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो ही हम अंदर जाएंगे, और ऑपरेटर का मीनिंग क्या है, एक कंडीशन से भी ट्रू रहेगी तो भी हम लोग अंदर जा सकते हैं. मतलब यहाँ पे आपका ट्रूथ टेबल का लॉजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ट्रूथ टेबल दिखाया है. एवरीवन शुड अंडरस्टैंड इट कि हाउ वी आर यूजिंग लूप. लूप कैसे लगाना है, कितने लूप्स उसमें डालना है, डिपेंड्स अपॉन यू. ऐसे नहीं कि मैडम if लूप में एक ही लूप डालेंगे, नॉट एट ऑल. यू कैन यूज मल्टीपल. ये द स्लाइड सेज दैट मल्टीपल यू कैन गिव द कंडीशंस हियर, बट इट शुड बी मीनिंगफुल. आपको पता होना चाहिए कि आप एम्परसेंड कब यूज करते हैं और कब यूज करते हैं. ओके, तो अभी हम लोग ऑनलाइन जीडीपी पे डायरेक्टली करके देखने वाले हैं. ओके, सो दैट यू हैव क्लियर दिस थिंग. ओके फाइन, सो हियर एवरीवन इज क्लियर दिस थिंग. ये हम लोग बाद में देखने वाले हैं, इसको मैं अभी फिलहाल क्या करने वाली हूँ, कमेंट करती हूँ. ओके, इज इट विजिबल एवरीवन? सबको ये दिखाई देना बहुत ज्यादा जरूरी है. अभी हम लोग इफ लूप के क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम करने वाले हैं. so everyone has to concentrate on this. Okay, so अभी आपका C++ में कोड स्टार्ट हो चुका है. I hope everyone should know hash include means what. Okay, so hash means क्या है, our no doubt I have already switched on C++ programming language. उसमें हमें आज सीखना है if loop सीखना है. Okay, today's topic will be what, if loop. इट्स वेरी important. इसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं.
सो मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने वाली हूँ, और ऑलरेडी मैंने क्लासरूम में please every student, now how many students are joined, that is 55 count today, it's very good count participant. So I request everyone has to join the Google Classroom. Okay, सबने Google Classroom, sorry, वो जो अपना इसका क्लासरूम है, किसका ऑनलाइन वीडीपी का जो क्लासरूम है वो ज्वाइन करना है। मैंने लिंक शेयर की है ग्रुप पे, और उस पे हर एक ने कोड करके देखना है। जब तक आप कोड नहीं करते हो डियर स्टूडेंट, तब तक आपको कोडिंग नहीं आएगा। और डोंट टेक स्ट्रेस, आप लोगों को कुछ सिंटैक्स स्टार्टिंग के याद रखने हैं, जैसे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखना ही लिखना है, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिखना ही लिखना है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, हमेशा याद रखनी है। ओके, सो वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इफ लूप। और मैं एवरीडे क्या करने वाली हूँ, इफ देन व्हाइल डू व्हाइल फॉर लूप के ऊपर असाइनमेंट देने वाली हूँ। तो आप लोगों ने वो असाइनमेंट भी करने हैं, प्रैक्टिस करनी है उसके ऊपर, और उसके बाद हमारा मेन डेटा स्ट्रक्चर जो भी है स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो सबने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया, उसमें से अपना असाइनमेंट करना स्टार्ट कर देना है। ओके फाइन, so we are focusing on today's first program, that is here the first line is given that hash include. Hash, what is mean by hash? Hash means preprocessor directive। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज है उसको क्या करना पड़ता है, प्री प्रोसेस करना पड़ता है। स्टार्टिंग में उसका प्रोसेसिंग होना चाहिए, सो दैट आवर प्रोग्राम विल रन। इसीलिए हैश दिया जाता है, हैश इंक्लूड इज कीवर्ड। इसके थ्रू हम लोग ये जो हेडर फाइल है आईओ स्ट्रीम, अभी iostream.h अब तक आप लोगों ने सीखा होगा, आगे .h देते थे, मीन दिस इज एक्चुअली हेडर फाइल, बट व्हेन वी आर राइटिंग लाइक दिस इन angular bracket iostream, we are giving the meaning of it, this is the container of C++। इसको क्या बोला जाता है, this is a container, everyone should understand it। why? Because it is container, because it is having two class। कौन से two class है उसके, they are having two class। which class are there, two class, one is ios input stream and output stream। okay, so input stream जो है, input stream मतलब इनपुट लेना, आउटपुट स्ट्रीम मतलब आउटपुट डिस्प्ले करना। सो इनपुट स्ट्रीम ये क्लास है, वो किसका पार्ट है, कंटेनर आईओ स्ट्रीम का क्लास है, फर्स्ट क्लास। देयर इज टू क्लास, फर्स्ट वन क्लास विल बी इनपुट स्ट्रीम एंड सेकंड क्लास विल बी आउटपुट स्ट्रीम। ओके, जब मुझे आउटपुट डिस्प्ले करना है, आउटपुट स्ट्रीम, एवरीवन इज एग्री विद दिस? ओके, सो आउटपुट स्ट्रीम दिस इज सेकंड क्लास। ओके, ये दो क्लास है, और ये दो क्लास के हमेशा याद रखो, सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका जो भी ऑपरेशन करना है वो वाया ऑब्जेक्ट ही होता है। ऑब्जेक्ट मतलब इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स रन टाइम एंटिटी। ओके, हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर उसको रन करना पड़ता है। ओके, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर दिस। ओके, so first one will be what, input stream class, second one output stream class। so what exactly input stream, ये जो class है उसका object कौन सा है, cin is the object of this class। this is what, object। okay, this is object of input class, of input stream class। okay, so everyone has clear on this। and for output stream class the object will be cout। ओके, सो ये दो ऑब्जेक्ट आप लोग यूज कर रहे हो प्रोग्राम के अंदर। हमें क्या यूज करता है, सी इन सी आउट यूज करना है, इसलिए हमें आईओ स्ट्रीम या सी प्लस प्लस के कंटेनर को यूज करना ही पड़ता, इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि वी हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ सी इन के सी प्लस प्लस के जितने भी फीचर्स है वो यूज करने होंगे, तो हमें ये हेडर फाइल को, ये कंटेनर को इंक्लूड करना ही पड़ता है। ओके, एंड सेकंड पार्ट इज यूजिंग नेम स्पेसेस, दिस इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। सपोज आपने इसको कमेंट नहीं किया, लेट्स से आपने क्या किया, लेट्स से मैं एक प्रोग्राम लिख रही हूँ। ओके, ये सबको क्लियर होना ही चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, after that we have to focus on why using namespace std is important, क्योंकि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है सी प्लस प्लस की, इसको यूज नहीं किया तो हम लोग कंटेनर भी एक्सेस नहीं कर सकते, नॉट अ सिंगल कीवर्ड वी आर गोइंग टू एक्सेस। फॉर एग्जांपल मैं दिखाती हूँ, सपोज मैंने इसको कमेंट किया यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, उसके बाद इसको कमेंट किया, मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, इंटीजर क्लास कर, इंटीजर मार्क्स कर रही हूँ और सीन मार्क्स कर रही हूँ, ये दो एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। ओके, अभी लेट्स से मैं इसको रन करती हूँ, व्हेन आई एम रनिंग इट, इट गिव्स मी द एरर, राइट। ओके, सो ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है, इसको तो मैं क्या करती हूँ, कंटेनर को
कमेंट कर देती हूँ, वी आर गोइंग टू सी द एरर. Okay, so what exactly? Yes, just see the error. Everyone student, the output window there is error. Scene was not declared in the scope. Yes, scene का scope ही नहीं है. ये error क्यों आया? क्योंकि मैंने क्या किया है? Using namespace std को comment किया. मतलब देखो इतना important है. Without using namespace std आपका प्रोग्राम कभी रन नहीं होगा. इसीलिए using namespace std देना पड़ता है. जब मैं इसको रन करूंगी तो मुझे रिजल्ट दिखाएगा. दैट इज यस, जैसे मैंने प्रिंट किया शायद हेलो वर्ल्ड जो मैसेज है वो डिस्प्ले होगा. ओके, आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस. फाइन. ओके, सो ओके फाइन. ओके, okay, program stepping here. Okay, fine. Okay, so everyone has cleared that concept. That is, everyone should know what is using namespace std. Let's just make sure I'm correct. It should give me some values or output. Yes, means what is the important thing is here? अभी वो error नहीं दिखा रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? Your program or using namespace std is very very important in our program. I hope everyone is agree with this. Okay, सबको समझ में आ रहा है अभी? Okay, so likewise we have to do. यहाँ पे वो run करने के लिए problem दे रहा है. Okay, fine. हम लोग फिर से क्या करेंगे? Okay, let's see we are taking a new file. Okay, control M. किया तो वो न्यू फाइल दे रहा है. लेट्स से टेस्ट फाइल. यू कैन सिलेक्ट. ओके ओके, तो यहाँ पे लेट्स से मैं क्या कर रही हूँ, नई फाइल सिलेक्ट कर दी हूँ यहाँ पे. सो इफ आई एम यूजिंग ऑनलाइन DBVS again, yes, again we have to reload it and we have to select the language will be C++. Okay, so I hope everyone agree with this. That is how what are the basic concepts of it. Okay, अभी हमें प्रोग्राम करना है. वी हैव टू फोकस ऑन if loop. अभी मैंने लेट्स से प्रोग्राम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के दिया आप लोगों को. दैट इज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप लोग C++ प्रोग्राम कर रहे हो तो यहाँ पे IO स्ट्रीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट यूजिंग namespace std also very very important. सेमीकोलन. then here our program will start. let's say मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ यहाँ पे. let's say write a program. ऐसे मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया. write a program, read a number. write a program to read number from user and check. We check whether check what we are going to check it. check whether that number is even or odd. ये असाइनमेंट भी मैंने दिया है, बट यू शुड क्लियर इट कि वो प्रोग्राम कैसे करना है. तो प्रोग्राम का क्या है, रीड द नंबर. मतलब फर्स्ट यू हैव टू थिंक द लॉजिक ऑफ इट. पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, वी हैव टू थिंक ऑन लॉजिक फर्स्ट देन प्रोग्राम. आई होप एवरीवन इज इन लिसनिंग मोड, राइट? सब लोगों को सुनाई दे रहा है, सब लोग सुन रहे हैं आई गेस. ओके, these are the very basic concepts. जिन लोगों को आता है no doubt, no problem, they can directly start doing the assignment in classroom, no problem. जिनको आता है, जिनको लग रहा है मैडम हमारा ये हो चुका है, हमें आता है, no problem, but everyone should understand this basic concept. okay, so प्रोग्राम क्या करना है हमें, दो पहले तो दिमाग में आना चाहिए. रीड नंबर करना है मतलब नंबर को स्कैन करना. स्कैन अल्गोरिदम कैसे आएगा, स्टार्ट रीड द नंबर मतलब स्कैन द नंबर एंड चेक वेदर. सपोज मैंने यहाँ पे अल्गोरिदम लिखा है. ओके, अल्गोरिदम में क्या आएगा, स्टार्ट, इसके बाद आएगा आपका रीड द नंबर मीन्स स्कैन नंबर. ओके, इसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप, अपने आएगी अल्गोरिदम की, नंबर को स्कैन कर रहा है. उसके बाद क्या करना है, स्कैन करने के बाद इफ चेक इफ नंबर इज इवन और ऑड, वी हैव टू चेक. ओके, तो कंडीशन क्या आएगी, इफ इवन और ऑड मतलब क्या, जो नंबर को डिविजिबल बाय उसके रिमाइंडर 0 आता है वो नंबर इवन होता है, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है वो नंबर ऑड होता है. सो वी हैव टू थिंक द लॉजिक हियर.
सो मैं यहाँ पे चेक करूंगी इफ द नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0, जिस नंबर का रिमाइंडर 0 है वो नंबर क्या रहेगा, इवन, आइदर ए, वो क्या रहेगा, ऑड रहेगा. आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस. ओके, सो लाइकवाइज वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट. ये हमारा एल्गोरिदम हो गया. अभी प्रोग्राम कैसे करना है. ओके, सो बेसिकली वी स्टडी ए स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर दैट इन मेन इज अ हार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम. मेन में फंक्शन आप लोग प्रोग्राम में कहीं पे भी लिखो, बट उसका एग्जीक्यूशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से ही होगा. ये इतना याद रखो सब लोग. मेन फंक्शन जो भी आप प्रोग्राम में स्टार्टिंग में लिखो, क्लास के नीचे लिखो, कहीं पे भी लिखो, but it should be a main function. Why it is called main? Because it is the soul of our program. मेन फंक्शन नहीं होगा तो कभी भी C++ का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. मतलब एक्चुअल जो इंस्ट्रक्शन देता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से. ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिक्लेयर करने वाले हैं. अभी देखो हम लोग ऑनलाइन जीडीपी में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसका सिंटैक्स इंटीजर है, मतलब मेन का रिटर्न टाइप इंटीजर है. ये फंक्शन है, उसको रिटर्न टाइप दिया है, मतलब ये इसीलिए हम लोग नीचे रिटर्न 0 कर रहे हैं. रिमेंबर स्टूडेंट, ये फंक्शन है मेन, उसको उसका जो डेटा टाइप है इंटीजर है, इसलिए हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, इंटीजर वैल्यू. जब हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा तब ये सारी चीज आपको फिर से क्लियर होगी. ओके, सपोज मैंने एक इंटीजर नंबर लिया, उसके बाद वो बोल रहा है कि रीड द नंबर. मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, सी आउट. सी आउट मतलब क्या, मुझे डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे. ओके, उसके बाद हम लोग ये इंसर्शन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं. ओके, इंसर्शन ऑपरेटर क्या बता रहा है कि हम लोग क्या करें, सी आउट इन डबल कोट हम लोग लिखेंगे एंटर द नंबर. ओके, नंबर को एंटर किया, ओके, देन सेमीकोलन. ओके, उसके बाद उस नंबर को क्या करना है, मुझे स्कैन करना है, तो सी इन दैट नंबर. ओके, सेमीकोलन. उसके बाद हमें क्या करना है, नंबर को स्कैन करने के बाद हमें क्या चेक करना है, हमें चेक क्या करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एवरीवन हैज टू कॉन्सेंट्रेट इट. ओके, अभी मुझे कंडीशन यूज करनी है. द कंडीशन विल बी व्हाट. ओके, सो सपोज मैंने नंबर दिया. ओके, इफ दैट नंबर, ओके, नंबर मॉड मतलब डिविजिबल 2 इक्वल टू व्हाट. हम ऐसे भी कर सकते हैं. ये देखो अभी मैं जो लिख रही हूँ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो. नंबर, अभी मैंने मॉड यूज किया. मॉड मतलब क्या, रिमाइंडर मुझे चेक करना है. जिस नंबर का रिमाइंडर, जैसे मैंने 1 लिया, 1/2 किया, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, उसका नंबर का जो रिमाइंडर 0 होगा, मतलब क्या वो 0 नहीं है. जिस नंबर का रिमाइंडर 0 नहीं होगा मतलब क्या हो गया, वो ऑड नंबर है. ओके, मॉड 2 इक्वल टू 0, देन क्या होगा, वी हैव टू, क्या होगा, कंडीशन देखो यहाँ पे, इफ कंडीशन वी आर यूजिंग. ये मैंने क्या किया यहाँ पे, एंटर द नंबर, मैसेज मैंने डिस्प्ले किया पहले तो. ओके, इतना वर्क हो रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं, हमेशा याद रखो. मैं अभी इसको रन करती हूँ, सिंपली रन. ओके, तो अभी आउटपुट विंडो पे उससे मुझे क्या दिखाना चाहिए, एंटर द नंबर. ओके, ये इसे नंबर दिखाया, मैंने नंबर डाला लेट से 23. ओके, एंटर. अभी वो आउटपुट नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने आगे कोड ही नहीं किया है. तो 1 by 1 पहले हमने सिंटैक्स को चेक करना है. तो C++ में पहले डिक्लेरेशन पार्ट होता है. दिस इज व्हाट, वेरिएबल डिक्लेरेशन, जो कि हमारे पाइथन में नहीं होता है. ओके, वेरिएबल डिक्लेरेशन. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब क्या, नंबर नाम का वेरिएबल मैंने लिखा है, वो मेमोरी में स्टोर हो चुका है एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में, और उसका लोकेशन क्या है, उसका मेमोरी एड्रेस जो रहेगा वो पर्टिकुलर एड्रेस पे वो स्टोर हो जाएगा. बट कितने बाइट अलोकेट करेगा, वो 2 बाइट्स. वाई, बिकॉज इंटीजर के लिए कितने बाइट्स अलोकेट होते हैं, इंटीजर के लिए 2 बाइट्स अलोकेट होते हैं. आई होप एवरीवन क्लियर दिस. ओके, इसलिए मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, लेट से मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को. ये नंबर लेट से मैंने अभी 23 ये नंबर लिया, उसका मेमोरी एड्रेस आएगा, लेट से मेमोरी एड्रेस रहेगा 1000, और ये 1000 मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होगा. लेट से मतलब क्या, जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो वो मेमोरी में चला जाता है, मेमोरी एड्रेस में स्टोर होता है, और वो कितने बाइट लेता है डिपेंडिंग अपॉन डेटा टाइप, जो हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में देखे हैं. इंटीजर कितने बाइट्स लेता है, 2 बाइट्स. दैट्स व्हाई इट allocates the 2 bytes here. Okay, so everyone has to clear this thing. So next code will be if number, if number mod 2 equal to 0 means that condition is given,
आई हैव टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड. ओके, सो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? रिमाइंडर जो नंबर है उसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर उसका क्या होगा? उससे 0 होगा तो वो नंबर क्या होगा? We have to print that number is even. Okay, so everyone has to clear this thing. Okay, so यहाँ पे क्या आएगा? See out, concentrate here. if statement के बाद मैं curly bracket डाल रही हूँ. suppose मुझे curly bracket मैंने क्यों डाला है? let always understand, मुझे more than one statement, एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखने होंगे तो मुझे स्कोप देना पड़ता है. ये क्या बताता है? इफ कंडीशन के बाद ये फंक्शन है, मतलब हमारा स्कोप कितना लिमिटेड है, ये करली ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा. मैं जो भी स्टेटमेंट लिखूंगी वो करली ब्रैकेट में आएगा. बट सपोज सिंगल मुझे एक ही स्टेटमेंट लिखना है तो नो नीड टू करली ब्रैकेट. ओके, और मुझे एक ही स्टेटमेंट लिखना है लेट से, तो मैं क्या कर सकती हूँ? डायरेक्टली सी आउट. इफ ये कंडीशन ट्रू होगी तो सी आउट क्या प्रिंट होगा? द नंबर इज व्हाट? नंबर इज इवन. आइदर इसका एल्स पार्ट क्या आएगा? यस, ये कंडीशन सपोज फॉल्स होती है. देखो, कंडीशन लिखते वक्त क्या इंपॉर्टेंट है वेरिएबल में, आपको क्या लॉजिक लगाना है, ये कंडीशन बहुत मैटर करेगी. और यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू ऑपरेटर दोगे तो एरर आएगा, बिकॉज वी हैव सीन दैट इक्वल टू ऑपरेटर फॉर इक्वालिटी. ओके, एंड हियर एल्स पार्ट में हम लोग लिखेंगे एल्स. एल्स क्या प्रिंट होगा? सी आउट. व्हाट इज एल्स पार्ट? number is odd. Everyone should clear this. Okay, so likewise we have to write the code here. Okay, so just we are going to run this code. Suppose मैंने पहले बोला if के अंदर एक ही स्टेटमेंट होगा. यहाँ पे देखो if कीवर्ड है, राउंडेड ब्रैकेट है, उसके बाद सेमीकोलन नहीं है. प्लीज रिमाइंड इट डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सेमीकोलन दिया नहीं जाता. कंडीशन के बाद हम लोग स्टेटमेंट के बाद ही सेमीकोलन देते हैं. ओके, और इसके अंदर आपको मोर देन वन एग्जीक्यूट करने होंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसके अंदर, तो ही हम लोग करली ब्रैकेट्स यहाँ पे देते हैं. बट आपने आदत ही लगानी है. इफ के बाद क्या आता है? कंडीशन. कंडीशन के बाद ये करली ब्रैकेट्स, देन एल्स. इफ यू वांट टू गिव द करली ब्रैकेट ऑफ एल्स आल्सो, तो यू कैन डू हियर. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? दे सकते हो यहाँ पे एंटर करके. ओके, अभी मैं इसको सपोज रन करूंगी तो उसमें आउटपुट देना चाहिए. ओके, तो ये अभी बुक पूछेगा एंटर द नंबर. लेट से मैंने एंटर किया 24. ओके, एंटर. यस, इट गिव्स मी द आंसर दैट नंबर इज इवन. सो एवरीवन हैज टू क्लियर दिस थिंग. तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हुआ? सो एग्जीक्यूशन के लिए उसका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो मैं बताती हूँ. उसके लिए हम लोग डिबग भी स्टार्ट कर सकते हैं. व्हेन वी आर प्रेसिंग F8, इट विल गिव द it will start the debugging. Okay, so लाइन बाय लाइन भी देखेंगे. पहले क्या किया कंपाइलर ने वो हम लोग देखते हैं. सपोज मैंने डिबगिंग स्टार्ट किया. ओके, फाइन. सो इफ आई एम प्रेसिंग F8 here, F8 I am pressing. Okay, we have to check if I want to stop to debugging, then we have to start the debugging process here. It is for that we should check that is yes, it is the F8 is the right syntax. Okay, again you need to start it. Debugging means what? We have to run line code line by line. मतलब एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? इंटीजर नेम से. पहले वो क्या करेगा? फर्स्ट नंबर को स्कैन करेगा, देन एंटर द नंबर, देन हम नंबर स्कैन करेंगे, वो नंबर इफ लूप में चला जाएगा. सपोज मैंने 24 डाला था, 24 मैंने डाला, देन 24 mod 2 इक्वल टू 0 है. यस, so yes, it's print that number is even, either number is odd. Okay, so likewise we have to check it. हम लोग करने वाले हैं. just I'm getting stop it, just start. यहाँ पे आप लोगों को विंडोज दिखाई दे रही है, वहाँ पे लोकल वेरिएबल आप चेक कर सकते हो, उसके एक्सप्रेशन प्रिंट कर सकते हो. मतलब सच में वो नंबर में वैल्यू जा रही है जो मैं नंबर यहाँ पे दे रही. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू do the work here. Okay, so if I'm pressing it, it's unable to work right now. So no doubt we'll clear this concept next time. But you should clear if loops now. And dear student, everyone has to implement the code जो assignment मैंने classroom में दिए